Yesterday we have learned the components of map. The main components are scale, direction, symbol, boundary, title. So it is all mentioned in our book. We have learned about the conventional symbols. You all have answered very well yesterday, and you have understood the important parts or components of the map. But we have not discussed about the scale of the map. And I have already told you map scale is a technical word, map scale. The scale which we use in the geometry box and the scale of the map, they are two different things. However, both gives us measurement. So scale of map. Scale of map has two parts. One is numerator, another one is denominator. So it is having a numerator. We have learned in numerator maths about numerator, and the bottom part is known as denominator. All right. So what is the numerator and what is the denominator? If we know that, then we will understand the meaning of scale, and so we can learn the definition of scale also. So first numerator, we will write this one. It is the map distance. Most shortcut is map distance. Numerator is map distance. All right. And denominator is ground distance. So what is map scale? Map scale is the ratio between two places on the map, the distance between two places on the map and the same two places on the ground or real earth. All right. For example, if we want to know the scale of the map, we will first find out the map distance of two places. All right, from suppose Delhi to Mumbai. These are the two places. We will draw a map. We will find out the distance between Delhi and Mumbai on the map. And the actual distance on the earth or actual distance on the ground between the same two places of Delhi and Mumbai, if we compare these two, if we find out the ratio between the distance of Delhi and Mumbai on the map and Delhi and Mumbai on the ground, then we get the idea of scale. So I will draw one map here. I'm going to draw one map of India. Mumbai, this is Delhi, and we will measure the distance between Delhi to Mumbai. Now we need the scale of our geometry box because this will give me the distance of two places, Delhi and Mumbai, on the map. Suppose the distance between Delhi and Mumbai on the map is suppose 5 centimeters. This distance is suppose 5 centimeters between Delhi and Mumbai. And the real distance between Delhi and Mumbai is suppose 5,000. Suppose I am giving you one example. The distance between Delhi and Mumbai is suppose 5,000 kilometers. But on the map it is 5 centimeters. Then the map distance between Delhi and Mumbai is 5 centimeters. And the real distance on the earth will be 5,000. We make it suppose 1,000. We make it 1,000 kilometers. So distance between 1,000 kilometers. So the ratio comes as 5 centimeters divided by 1,000 kilometers. So we will convert this 1,000 kilometers as centimeters. So we will add another 1 kilometer has 1 lakh centimeter. How much centimeter is there in 1 kilometer? 1 kilometer has lakh.
1 kilometer centimeter. So we will convert the 1000 kilometer into all into centimeter, and then we will divide and we will find out the distance. All right. So we divide 5 1 5, 5 2 0. So 1. Now it becomes 1 centimeter, and it will become how much it is? One. We will convert it into centimeter first, and then we will find out the proportion. All right. So that way we will find out the scale of different places. So the difference between Delhi to Kolkata or Kolkata to Chennai, it all can be find out. All right. So it is the ratio between the distance of two places on the map and the same two places on the ground. So this is the idea of scale. Very good. One answer we have got. There are two types of scale. तो इसको हम लोग क्या कहते थे तभी डिवाइड करने वाले थे. ये जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 किलोमीटर. तो इसमें क्या होगा, ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, ये 4 है और ये 5. तो एक एक डिस्टेंस कितना हो गया हर 1 सेंटीमीटर? 200 किलोमीटर. नेक्स्ट 400, नेक्स्ट 600, 800 and then 1000. Total distance is 5 centimeter. That means 1 centimeter represents 200 kilometers. So this method is known as statement. Statement method, where we say 1 centimeter on the map is showing actual 200 kilometer of the ground. तो ये हो गया स्टेटमेंट मेथड. ये हो गया नंबर 1. नंबर 2 क्या हो गया? RF बोलते हैं. नंबर 2 क्या हो गया? RF. तो 1 सेंटीमीटर को हम सिर्फ 1 रख दिए हैं, सेंटीमीटर नहीं लिख देंगे, 1 रख दिए, यहाँ 1 यूनिट आ गया. और ये 200 किलोमीटर को अब हम लोग सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में 1 लाख है, तो 200 किलोमीटर में वो मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमको वो मिल जाएगा. ठीक है, मिल जाएगा. इसमें 1 यूनिट किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर हो जाएगा. अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ये भी करवा रही हैं. Alright? तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसमें हम यूनिट नहीं लिखते हैं कि वो सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है कि इंच है या मिलीमीटर है. जो ऊपर वाला सोचेंगे वही नीचे वाला भी ऑटोमेटिक हो जाएगा. Right? तो तुम लोग अपना म्यूट कर लो, नहीं तो हम सबको म्यूट कर देंगे. ऑलराइट. जरूरत पड़ेगा तब बात करोगे, नहीं तो बीच में नहीं बोलना. एंड एक मेथड हो गया स्टेटमेंट, जिसमें क्लियरली बोल देते हैं 1 सेंटीमीटर, दूसरा उसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं. तो ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हो गया 20 लाख किलोमीटर. अगर ये 1 किलोमीटर है तो 20 लाख, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 20 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा. इस तरह से हम लोग जो है स्केल को समझते हैं. ठीक है. और एक मेथड है नंबर 3. 1 2 हो गया. नंबर 3 इज ग्राफिकल. नंबर 3 क्या है? ग्राफिकल स्केल है. चलो, तो ग्राफिकल स्केल क्या होता है उसको समझ लेंगे. ग्राफिकल स्केल में हम लोग खाली ये दिखा दिए 1, ये 0 है और ये 1. मान लो ये हो गया, इसके अंदर ऐसे ऐसे डिवीजन हो गया, इसके अंदर ऐसे ऐसे डिवीजन हो गया. ये स्केल
तो ये अगर यहाँ 1 किलोमीटर लिख दिए हैं और ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये दिख रहा है ये 1 सेंटीमीटर है और ये एक और सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर जो है वो मान लो 1 किलोमीटर दिखाता है। 2 सेंटीमीटर मान लो 1 किलोमीटर। और हम लोग का यही वाला बनाते हैं, तो ये चेंज कर देते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख दिए 200 किलोमीटर और ये हो गया 400 किलोमीटर। और आगे बनाएंगे 1 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो वो 600 किलोमीटर हो गया। और अगर लंबा कर दिए स्केल में 1 सेंटीमीटर और बना लिए तो ये 800 हो जाएगा। तो हर 1 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर दिखा रहा है, तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया। टोटल 5 सेंटीमीटर लाइन बना दिए तो इसका मतलब हम 5 सेंटीमीटर अगर दिखा दिए तो इसका मतलब हम 1000 किलोमीटर को दिखाते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर दिखा रहे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली रियल ग्राउंड का 200 किलोमीटर है। कॉपी का 1 सेंटीमीटर, मेरा एक्चुअल ग्राउंड का 200 किलोमीटर है। तो यहाँ ये ग्राफिकल मेथड ऑफ स्केल हो गया। ओके, तो चलो ये सब स्केल हो गया, पार्ट्स ऑफ मैप हो गया। अब सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, जितना भी हम लोग को एटलस मिलता है और मैक्सिमम कंट्री क्या करते हैं, आरएफ मेथड को फॉलो करते हैं। ये क्या हो गया आरएफ, कोई बता सकते हो व्हाट इज आरएफ? आरएफ क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ मीन्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कोई कोई कंट्री जो है फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम में चलता है और कोई कोई कंट्री जो है किलोमीटर और ग्राम, किलोमीटर और सेंटीमीटर और सेकंड सिस्टम में चलते हैं। ठीक है ना? तो जो कंट्री जैसा भी सिस्टम फॉलो करते हैं, चाहे वो फुट पाउंड सिस्टम यूज करे या मीटर और सेंटीमीटर और सेकंड और ये करते हैं मेट्रिक सिस्टम, एक्चुअली जो हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं वो मेट्रिक सिस्टम है, जिसमें सब जो है हम मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर में हम जो है पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लैंड जो है वो इंच में और पाउंड में और जो है वो फुट में जो है अपने कंट्री में पढ़वाते हैं। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आज वर्ल्ड में सभी कंट्री यूज कर सकते हैं और इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। जो भी वन को हम यूनिट समझेंगे, नीचे वाला भी वही यूनिट हो जाएगा। ठीक है? ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 200 लाख सेंटीमीटर। तो ठीक है, चलो ये हो गया, सबको स्केल का बारे में बता दिया। अब हमको बताओ कि टाइप्स ऑफ स्केल भी होता है क्या? टाइप्स ऑफ स्केल क्या क्या हो गया? स्टेटमेंट, और क्या हो गया? ग्राफिकल मेथड, और क्या हो गया? आरएफ। हम शॉर्टकट में लिख दिया आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये तीनों हो गए स्केल। और नेक्स्ट है हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? वेरी गुड, तुम्हारे तरफ से कुछ कुछ आंसर लग रहा है आने वाला है। कोई बता सकते हो हम लोग टाइप्स ऑफ मैप का? वेरी गुड, एक तो आ ही गया। वेरी गुड, एक तो आ गया हमारे पास आंसर टाइप्स ऑफ मैप। अरे वाह, सब आ गया लग रहा है। टाइप्स ऑफ मैप हम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। एक हो गया पॉलिटिकल मैप, और क्या हो गया? फिजिकल मैप, और एक क्या हो गया? थीमेटिक मैप। अरे वाह, तो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। को पॉलिटिकल और फिजिकल मैप तो दुकान में भी खरीदने में मिलता है, 1 रुपीज 2 रुपीज का मिल जाता है। और इसमें दोनों में हमको सबसे पहले फर्क
पता करना है, क्योंकि हम 4 में, 3 में, 5 में, 3, 4, 5 हर क्लास में ये पढ़ लिए हम लोग। फिजिकल मैप में माउंटेन, प्लेन, रिवर, फॉरेस्ट, ये सब कुछ हम लोग को जो है देखने मिलता है। अगर एक मैप है इंडिया का, उसमें हिमालय बना हुआ है, उसमें रिवर बने हुए हैं, उसमें डेजर्ट बना हुआ है, तो वो हो गया हिल्स, माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, प्लेटो, रिवर्स, ये सब अगर मैप में है तो वो हो गया फिजिकल मैप। अगर मैप में हमको मान लो कि इंडिया के जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सारे स्टेट बाउंड्री दिख रहा है, फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें अगर और छोटे छोटे अगर हमको बाउंड्री दिख रहे एरिया वाइज, तो उनको हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। पॉलिटिकल मैप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के हिसाब से बनता है। जैसे मान लो कि गया जिला जहाँ खत्म होगा वहां से हो सकता है नवादा स्टार्ट हो जाए, औरंगाबाद स्टार्ट हो जाए, हो सकता है और भी जो बिहार के हमारे गया को घेरे हुए जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, रोहतास हो सकता है ना, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, और नवादा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से वो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से बाउंड्री बनाए जाते हैं। और तुम्हारे बुक में भी देखो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप बना हुआ है। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब थर्ड वाला मैप जो है वो हम लोग को पता करना है। तो थीमेटिक मैप में जो है हम कोई एक टॉपिक चूज कर लेते हैं। जैसे पहले तो वर्ल्ड बना लिए, इंडिया बना लिए, उसको मैप बन ही गया पहले हम लोग का वर्ल्ड मैप। अब वर्ल्ड मैप में अगर हम रेनफॉल दिखा रहे हैं, वर्ल्ड मैप में अगर हम सॉइल दिखा रहे हैं, वर्ल्ड मैप में अगर हम इम्पोर्टेंट कोई मान लो कि फीचर्स को दिखाना चाह रहे हैं कि रेलवे लाइन कहाँ से गया है, इंडिया में कहाँ कहाँ रेलवे वाला लाइन है, कहाँ कहाँ रोडवे वाला मैप है, तो उनको हम लोग थीम या थीमेटिक मैप बोलते हैं। ठीक है, तो कोई एक थीम अगर हम शो करते हैं, जैसे सॉयल मैप बना दिए इंडिया वाला, कहाँ कहाँ कौन सा सॉयल है। मान लो फॉरेस्ट दिखा रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो उसको हम लोग बोल देंगे थीमेटिक मैप। ठीक है, माउंटेन दिखाते हैं तो वो मेनली माउंटेन को भी अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो वो थीम तो है ही, लेकिन उसको हम कलर से दिखा सकते हैं, स्नो कवर से दिखा सकते हैं, ग्लेशियर दिखा सकते हैं, माउंटेन में कितना ग्लेशियर बन है कौन कौन से जगह, तब हम थीम चूज करके वो दिखाते हैं। अब बताओ क्या हम लोग जो है मैप में साइक्लोन दिखा सकते हैं? चलो सोच के बताओ, क्या मैप में हम लोग सर साइक्लोन क्या होता है? अरे साइक्लोन मतलब तूफान होता है। आप बताओ कितने लोग साइक्लोन और तूफान सुने हो? क्या हम बता सकते हैं टीवी में वार्निंग है ये जगह में नो साइक्लोन? सर, नो सर। टीवी में न्यूज में बताता है ना कि अरे तूफान आने वाला है, मछुआरा कोस्टल एरिया में मत जाओ, उड़ीसा और ये सर लेकिन मैप लोग नहीं शो कर सकते, मैप में नहीं शो कर सकते ना, वो तो न्यूज की तरह। न्यूज वाला मैप में ही दिखाता है क्लाउड है और बहुत तेज साइक्लोन आ रहा है, सबको दिखा देते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन साइक्लोन कहाँ पहुंचने वाला है। जो पहला वाला ब्लू साइक्लोन है, दूसरा वाला अभी हम एक और साइक्लोन बना दिए ये रेड, और ये देखो ये साइक्लोन जो है, और ये साइक्लोन धीरे धीरे ऐसे अपना रास्ता तय करके आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग जो है वो अभी जो है ये जून जुलाई अगस्त में खूब तेज बारिश होगी ना, तो हम रेनफॉल वाला मैप भी दिखा देंगे। और टीवी न्यूज में देखे हो महानगरों का तापमान बताता है, किसको किसको मालूम है यस महानगरों का तापमान बताता है? यस सर, बताया जाता है न्यूज में। हाँ, तो न्यू इंडिया का मैप में एक गाड़ी चलता है और एक एक जगह में जा जाके वो जो है हाँ टेम्परेचर दिखा क्या देता चीज है। है? टेम्परेचर दिखा दिया, रेनफॉल दिखा दिया, साइक्लोन दिखा दिया, ये सब चीज जो है हम लोग थीमेटिक मैप में दिखाते हैं। कोई एक टॉपिक ले लिए, कोई एक थीम डेवलप कर लिए। और अच्छा कोई बताओगे ये वाला हम क्या बनाए हैं? हाँ वेरी गुड, एक और आंसर आ गया, फ्लड भी हम दिखा सकते हैं। कौन कौन नदी में फ्लड आ गया, क्या गंगा नदी में फ्लड आ गया कि ब्रह्मपुत्र में फ्लड आ गया? अच्छा बताओ ये अभी जो है
अरे वाह, क्लाउड तो दिख रहा। अब नेक्स्ट वाला सिंबल बताओ हम क्या बनाए। सर कड़कने वाला है। बिजली। हाँ, बिजली वाला। वेरी गुड। तो ये जो है क्लाउड में जो है बहुत तेज बिजली और वार्निंग दे देता है, लोग बाहर ना निकले, अभी बहुत तेज बिजली गिरने वाला है और बिजली कड़कने वाला है। तो ये सब थीम को हम दिखा सकते हैं। गुड। ओशन करंट सर को। थीम में सर हाँ, थीम में स्नोफॉल भी शो करते हैं क्या? अरे वाह, हाँ, स्नोफॉल भी शो करता है। अगर हम लोग मान लो नॉर्थ पोल में चले जाएंगे, वहां बारिश ज्यादा होगी कि स्नोफॉल होगी? स्नोफॉल। हाँ, तो वहां का जितना पढ़ने वाला बच्चा लोग है सब स्नोफॉल ही पढ़ता है। अगर वो इंडिया में आ जाएगा ना तो लोग बड़ी खुश होता है बारिश देख के। क्यों जानते हो? क्योंकि उन्हें वहां पे स्नोफॉल देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे उन्हें हाँ, रेन और वाटर। हम लोग को किसमें ज्यादा स्पेशल लगता है, रेनफॉल की स्नोफॉल? स्नोफॉल। हाँ, हमारे यहाँ नहीं ना होता है। नो सर, तो इसलिए ये अगर हमारे। ज्यादातर पहाड़ी एरिया में होता है, अब जहाँ पे बताओ हम। माउंटेन होता तो कितने लोगों को समझ में आ गया थीमेटिक मैप? हाँ, आदर्श राज, कुछ प्रॉब्लम है? तुम हैंड रेस किए हो। अरे वाह, सब जो जो समझ गए वो लोग हैंड रेस किए हो। गुड। तो थीमेटिक मैप हमको समझ में आ गया। अब जो है हम लोग एक और मैप के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये हो गया पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक। अब क्या हम ये इंडिया को बड़ा कर सकते हैं? क्या हम एक बड़ा इंडिया बना सकते हैं? है। यस सर। देखो, हम एक बड़ा इंडिया बना रहे हैं ना। ये बड़ा इंडिया है और ये वाला छोटा इंडिया है। कितने लोग को दिख रहा है? एक बड़ा इंडिया बना दिया है और एक छोटा वाला इंडिया बना दिया है। अब बताओ किसमें ज्यादा डिटेल मिलेगा, इसमें ज्यादा डिटेल मिलेगा कि इसमें? सर बड़ा बड़े वाले में। बड़ा वाला में कि छोटा वाला में? सर बड़े वाले में सर। इसका मतलब यही सेम इंडिया को हम बड़ा कर रहे हैं। हम लोग टच स्क्रीन को जूम करते हैं, बड़ा होता है ना। यस सर। यस सर। और उसको फिर छोटा भी कर सकते हैं क्या? ये बड़ा मैप को यस छोटा। सर। जब बड़ा और छोटा करते हैं कोई इलाके को, कोई एरिया को, तो उसको हम लोग तब क्या बोलेंगे? लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। क्या बोलेंगे? लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप। अब समझते हैं क्या है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। तो यस एक्चुअल एक्चुअल हमारा जो अर्थ है वो काफी बड़ा है ना। वो पेपर में आएगा ड्राइंग करने से? नो सर। पेपर में जब वो नहीं अटेगा पूरा वर्ल्ड, लेकिन अगर हम वर्ल्ड मैप को पेपर में दिखा रहे हैं तो इसका मतलब जो है हम पूरे रियल अर्थ के बहुत बड़े एरिया को जो है हम उसको साइज को छोटा करके हम मैप में दिखा रहे हैं। तो वो हो गया स्मॉल स्केल मैप। तो होल वर्ल्ड जो है, होल वर्ल्ड या एक पूरा कॉन्टिनेंट या पूरा एक ओशन अगर हम मैप में दिखा रहे हैं तो वो हो गया स्मॉल स्केल मैप। कितने लोगों को समझ में आया? Small scale map show a very big part on small size. Very good. Small scale map, they show very large part, just like the whole world और एशिया और अमेरिका। ये काफी बड़े जगह है जिनको हमको छोटा करके दिखाना पड़ता है, तब वो पेपर में फिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में गया बड़ा है कि छोटा जगह है, बताओ? सर छोटा जगह। हाँ, अच्छा, गया छोटा है और डीएवी स्कूल बड़ा है सर कि छोटा। गया ज्यादा बड़ा है, बताओ? छोटा सा। सर गया जगह बड़ा। डीएवी स्कूल छोटा है। यस सर।
ओ, गया से छोटा है डीएवी स्कूल? यस सर। यस सर। अच्छा, अब बताओ डीएवी स्कूल बड़ा है कि तुम्हारा घर बड़ा है? डीएवी स्कूल। कौन कौन ज्यादा बड़ा है, डीएवी स्कूल? यस सर। ओहो, तो हमको अब कंपेयर करना है कि कौन छोटा एरिया है, और उसको डिटेल में अगर हम मैप में शो कर रहे हैं तो वो लार्ज स्केल हो गया। अगर हमको स्कूल का मैप और गया डिस्ट्रिक्ट का मैप मिल जाता है तो इसका मतलब हम लार्ज स्केल मैप बना रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल अर्थ का वो बहुत छोटा जगह होता है। कितने लोगों को बात समझ में आया? गुड। स्वर्णिमा हैंड रेज किया है, इसका मतलब उन लोग को और भी अच्छा, स्वर्णिमा, गायत्री, आदर्श सबको समझ में आ गया है। तो इसका मतलब छोटे इलाके को अगर हम मैप में दिखा रहे हैं और उसमें हमको डिटेल मिल जा रहा है तो हम जो है उसको लार्ज स्केल बोलेंगे। तो एक सेंटेंस क्या हो जाएगा? ए लार्ज स्केल मैप शो ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रियल अर्थ ऑन बिग साइज। जैसे कि गया का मैप हो गया, गया बहुत छोटा है। अब बताओ, गया छोटा है कि बिहार छोटा है? सर गया। गया। अच्छा, अब बताओ। वेरी गुड। और बताओ, बिहार ज्यादा छोटा है कि इंडिया ज्यादा छोटा है? सर बिहार। अब बताओ, इंडिया ज्यादा छोटा है कि एशिया? इंडिया। इसका मतलब अब हमको समझ में आ गया कि कैसे साइज, कैसे एक ही जगह को इंडिया, कभी एशिया के कंपैरिजन में इंडिया छोटा हो गया और बिहार के कंपैरिजन में इंडिया बड़ा हो गया। एक ही जगह लार्ज स्केल भी हो सकता है और स्मॉल स्केल भी हो सकता है, तो हमको पता करना है कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब बताओ, एलकेजी का बच्चा ज्यादा टॉल है कि क्लास 6 का बच्चा? क्लास 6 ज्यादा लंबा है? ओ, अब बताओ, 6 का बच्चा ज्यादा लंबा है कि 12 का बच्चा? 12 का। तो अब तुम समझ में आ गया ना कि तुम्हारा एक बार कंपैरिजन हुआ एलकेजी के साथ तो तुम बड़े हो गए, और तुम्हारा ही कंपैरिजन जब क्लास 12 के साथ हुआ तो तब तुम छोटे हो गए। यस सर। ओके, तो ये हो गया टॉपिक, कैसे हम लोग स्केल ऑफ मैप से जो है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, और बाकी मैप क्या हो गया? पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप। और जब हम एक रूम के बारे में बनाते हैं, प्लान करते हैं कि डोर कहाँ है, विंडो कहाँ है, और वॉल में कौन सा जगह में हम टीवी लगाएंगे, और बेड कहाँ रखेंगे, कर्टेन कैसे लगाएंगे, ये सारा चीज जो होते हैं प्लान, इन सारे चीज को हम लोग बोलते हैं प्लान। तो प्लान सबसे ज्यादा डिटेल होता है। तो जब भी तुम्हारे अगर कोई बिल्डिंग बनना होता है, जैसे स्कूल बिल्डिंग हुआ या घर का बिल्डिंग हुआ या हॉस्पिटल बिल्डिंग हुआ, तो वहां पे सबसे पहले वो पूरा बिल्डिंग का प्लान बना लेते हैं। बात समझ में आया? यस सर। अब देखो, हम लोग जो है, यस हाँ, अब हम लोग एक आजकल जो है फ्लैट बेचने वाला प्लान बना के देता है ना, 2 बेडरूम का प्लान और 3 बेडरूम का, वो प्लान बना के देता है। स्क्वायर बाउंड्री है, इसमें एक डोर बना दी है, और ये डोर हो गया, इधर एक विंडो हो गया, इधर एक और विंडो हो गया, एक और विंडो हो गया, इसके अंदर से एक रूम निकाल लिए, एक और रूम निकाल लिए। इस तरह से इसके अंदर में एक बेडरूम हो गया, एक हॉल हो गया, एक किचन हो गया, एक लैट्रिन बाथरूम हो गया। तो हम ये जो अगर ड्राइंग में शो कर ले रहे हैं तो ये सब क्या हो गया? प्लान। ये भी एक तरह का मैप है, एक का साइंटिफिक ड्राइंग है, लेकिन वो एक रूम का या एक बिल्डिंग का प्लान दिखाता है, जिसमें और ज्यादा डिटेल होता है, जिसमें हम दरवाजा, खिड़की और उनका डायरेक्शन और उनका साइज सब कुछ दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक इंडस्ट्री का प्लान, एक टेम्पल का प्लान, एक गार्डन का प्लान और एक पूरे टाउन का भी प्लान होता है। अब बताओ, कौन कौन डायरी में देखे हो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई का मैप? यस सर। हाँ, हम लोग के पास डायरी मिलता है ना, तो वो डायरी में दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, इसका जो है मैप रहता है।
और उसमें रोड रहता है, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स रहते हैं, कहाँ स्टेशन है और कहाँ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है। यस सर। वो हो गया, तब हम वो प्लान की बात कर रहे हैं, तो उसमें टाउन प्लानिंग रहता है। ठीक है। और कलेक्शन ऑफ बुक जो है तुम लोग जानते ही हो ना, बुक ऑफ मैप। सर एटलास। हाँ, वेरी गुड। एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप. So that collection can show the whole world, all the continent, all the countries and many more. तो ये हो गया। अब बताओ, चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? आई थिंक यस सर। यस सर हो गया ना। यस सर। अब जो है Yes, sir. कीवर्ड, जो है कीवर्ड में 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल लिखा हुआ है, और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब हम आंसर बता देंगे। और आज का हम लोग का जो है, तुम लोग प्रॉमिस किए हो ना, ये वाला जो है ये भी एक बार तुम लोग को बना लेना होगा। ये क्या है? कन्वेंशनल सिंबल। यहाँ क्या है? कन्वेंशनल सिंबल बुक में। कन्वेंशनल सिंबल। हाँ, और ये वाला क्या है? सर इसको पेयर कॉपी में। कंपास सर, कंपास। हाँ, वेरी गुड। और यहाँ कितने डायरेक्शन है? सर 4। और 4 मेजर डायरेक्शन को हम लोग कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, ये कार्डिनल पॉइंट्स है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होते हैं, जिससे मदद लेके हम बाकी और दूसरे दूसरे डायरेक्शन भी जो है इन बिटवीन है, उनको पता कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये रूम में ये वाला हो गया नॉर्थ। ये ऑपोजिट वाला क्या होगा? रूम का नॉर्थ है, तो ये वाला क्या होगा डायरेक्शन? क्या होगा? राइट हैंड साइड क्या होगा? साउथ। नॉर्थ और साउथ तो हो गया। राइट हैंड ईस्ट। वेस्ट एंड वेस्ट। अब बताओ, ये रूम का ये सेंटर हो गया, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। बीच में क्या हो जाएगा? ईस्ट और साउथ के बीच में? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। और ये साउथ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में? साउथ। सर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। सर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। 2 मेन डायरेक्शन के बीच में इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो गया। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये इंटरमीडिएट है। और भी इसके बीच में हम लोग ये कर सकते हैं। ये हो गया NNE और ये वाला हो गया ENE। ये ENE ईस्ट और इसके बीच में है। ठीक है। ये NNE है, और ईस्ट और इसके बीच में हो जाएगा ENE। और ईस्ट और ये साउथ ईस्ट के बीच में हो जाएगा ESE। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। ठीक है। अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इसको क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक बाय बाय कर देते हैं। बाय। बाय। चैप्टर इज फिनिश्ड।